پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پاکپتن میں 80 کلومیٹر رقبے پر کاشت فصلیں تباہ گئیں۔ دریائے چناب میں تریمو بیراج پر پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک ریکارڈ۔ تریمو بیراج بچانے کے لیے 18 ہزاری بندی میں شگاف ڈالنے کے لیے بارود نصب کر دیا گیا۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں بارش۔ لاہور میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک۔ سب سے زیادہ 135 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ہوئی۔ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا۔ بیدیاں روڈ پر اسماعیل پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوئے۔ ننکانہ میں بارش سے گلیاں، بازار، تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ملکپال میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں میں بارش۔ بنیر میں موسلا دھار بارش سے دریا میں بہاؤ تیز، ندی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ نشیبی علاقے زیریاب ضلع خیبر میں جمرود کے مقام سے بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ پاک افغان شاہراہ کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ گیا، ٹریفک کی روانی معطل۔ پشاور، بنوں، کرک، مالاکنڈ، ایبٹ آباد میں بھی برسات۔ آزاد کشمیر کے اضلاع باغ، میرپور اور بھمبر میں بارشوں کے بعد ندی نالے بفر گئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف چین پہنچ گئے۔ تیانجن کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم 31 اگست سے 1 ستمبر تک SCO سمٹ میں شرکت کریں گے، اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی صدر شی جن پنگ اور چینی ہم منصب سے ملاقات بھی شیڈول۔ عوام کی خدمت اور مدد کا تاریخی ریلیف آپریشن وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نگرانی میں جاری۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں پیشگی اقدامات کے باعث پنجاب بڑے جانی نقصان سے بچ گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے پہلی بار ڈرون سروس کا آغاز کیا گیا۔ راوی، چناب اور ستلج میں ڈرون سے نگرانی جاری۔ ڈرون فیڈ اور AI نظام متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا مرتب کر رہا ہے۔ مریم نواز نے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نظام کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعلیٰ مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے مقرر وزراء سے رابطہ۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریا کے کنارے بندوں کی نہری نظام کی کڑی نگرانی کی جائے۔ تمام متعلقہ محکمے اور انتظامیہ فیلڈ میں متحرک رہیں۔ 2 یا 3 ستمبر کی رات سیلاب سندھ میں داخل ہوگا۔ 102 حساس مقامات پر مشینری پہنچا دی۔ حکومت سندھ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ خدا نخواستہ کوئی خراب صورتحال پیدا ہوئی تو بھی تیار ہیں۔ کنٹرول روم قائم کر کے ایمرجنسی نمبر جاری کر دیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سیلاب سے 16 لاکھ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ 1600 سے زائد دیہات کو خطرہ ہے۔ 167 UCs متاثر ہو سکتی ہیں۔ وزراء اور سرکاری مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ اور ٹوپا ٹیک سنگھ میں ریسکیو آپریشن۔ آبادی کو بچانے کے لیے جھنگ اور فیصل آباد میں 3 مقامات پر بند میں شگاف ڈالے گئے۔ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تانیہ والا اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں ریسکیو کیمپس۔ متاثرین کو ضروری طبی امداد اور مفت ادویات کی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ سنگھ کمیونٹی کا دربار صاحب کرتارپور میں بر وقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین۔ سکھ رہنما رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا بر وقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ سول انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہی، ان کا بھی شکریہ۔ پاک فوج کے جوان آخری شخص کی بحفاظت منتقلی تک کھڑے رہے۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا پاکستان ہماری دھرتی، ہماری جان ہے۔ پاکستان اور سکھوں کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ سرکاری ملازم پر تشدد اور دھمکیوں کے کیس میں ملزم فرحان غنی اور دیگر کی رہائی پر عدالت برہم۔
तफ्तीशी अफसर ने रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने पूछा मुल्जिमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। देखेंगे तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं। मुल्जिमान की रिहाई से मुतालिक 497 की रिपोर्ट पर मुल्जिमान को नोटिस। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुल्जिमान की बेगुनाही की रिपोर्ट मंजूर कराने अदालत पहुंच गए। एटीसी जज से ओपन कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट पर ऑर्डर करने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा पुलिस की 497 की रिपोर्ट पर 2 सितंबर को ही फैसला होगा, आप केस की तारीख पर आएं। पंजाब में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह का मुकाबला पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी से होगा। पंजाब असेंबली के अरकान 9 सितंबर को सेनेट की नशस्त के लिए वोट डालेंगे। कोहाट में गश्त पर मामूल QRF की गाड़ी पर हमला, ASI अशफाक शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर 3 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला का कोहाट में फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद ASI को खराज अकीदत, कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बावजूद भारतीय मीडिया झूठ बोलने से बाज न आया। बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉ की इमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त को खबर दी कि 3 पाकिस्तानी हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान खटमंडू के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया ने तीनों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मीडिया पर झूठी खबर के बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के वीडियो बयानात सामने आ गए, जिसके बाद गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारतखाने में सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान बरादराना मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत और सफीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर हर आजमाइश पर पूरा उतरे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने अपने खिताब में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम को उजागर किया। कहा खित्ते में यह अपनी नौयत का पहला और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा है। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर के साहबजादे एरिक ट्रंप भी बतौर स्पीकर शरीक हुए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया आलमी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी क़यादत के नुमाइंदों की मौजूदगी में पाकिस्तान के वजीर को भारतीय माहिरीन से दाद मिली। भारत के सबसे बड़े बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने बिलाल बिन साकिब को खिराज तहसीन पेश किया। कहा काश भारत में भी ब्लॉकचेन का ऐसा लीडर होता जैसे पाकिस्तान के पास बिलाल बिन साकिब हैं। सदर आसिफ जरदारी ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। हुकूमत बलोचिस्तान ने अपने नॉन एक्स ऑफिशियो रुकन को तब्दील करते हुए महफूज अली खान को एक्स ऑफिशियो रुकन नामजद कर दिया। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर जरदारी ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से मुलाकात। कौंसल जनरल का कहना था अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को मुआवनत फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध ने अमरीकी कौंसल जनरल को कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड का दौरा करने की दावत भी दी। अशराफिया की अय्याशियां बंद की जाएं। जकार्ता से शुरू होने वाले मुजाहरे इंडोनेशिया के दूसरे शहरों तक फैल गए।
सूबा सुलावेसी में मुजाहिदीन ने असम्बली की इमारत को आग लगा दी। 3 अफराद जिंदा जल गए, 5 झुलसकर जख्मी हो गए। दर्जनों गाड़ियां फूंक डाली, दर्जनों सूरत हाल कशीदा। जलाओ घिराव का सिलसिला जारी। अरकान पार्लियामेंट की भारी तनख्वाहों में मराद के खिलाफ तलबा सड़कों पर। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 35 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर हमलों में 4 अफराद जान से गए। 3 बच्चों समेत 10 अफराद भूख की वजह से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 332 हो गई। 124 बच्चे भी शामिल। पनाहगुजीन कैंपों पर बमबारी जारी। सेफ जोन भी काबिज फौज की जारहियत से महफूज नहीं। मगरबी किनारे में भी ऑपरेशन के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका का फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास और दीगर को यूएन जनरल असेंबली इजलास के लिए वीजे देने से इनकार। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फलस्तीन अथॉरिटी को दहशतगर्दी को मुस्तरद करना होगा। यक तरफा तौर पर रियासत तस्लीम कराने की कोशिशें तर्क करना होंगी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने अमरीकी फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, यह बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को अमरीका में मछली बरामदात की 4 साला इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने बताया, इजाजत पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी हैं। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं ली गई। अपील के हक के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद 14 अक्टूबर तक मौखिर। अमरीकी अपीलेट कोर्ट में 7 जजेस ने फैसले की हिमायत और 4 ने मुखालफत की। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ नाफिज रहेगा। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालती फैसला जानिबदाराना और अमरीका के लिए तबाहकुन है। ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद आज मेजबान यूएई से टकराएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। गुज़श्ता रोज इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया। शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 पर ढेर। हारिस रऊफ के 4 शिकार, शाहीन, मोहम्मद नवाज और सुफियान की 2-2 विकेटें। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50 मैच के हीरो करार। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अपने पहले मैच में अल्तावन को 5-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के फिलिक्स ने डेब्यू पर शानदार हैट्रिक की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल किया।